कि पोस्टर को लेके क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा पोस्टर है. What would you like to say about the poster? The first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings have. We have either spiritually, emotionally, or physically. And my primary reason to be part of this project is because of Adam. He has expressed to me certain experiences that he has while living abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So uh, yeah. Adam, what would you like to add? As she said about the face value and all. कुछ अगर आप ऐड करना चाहोगे इस पे क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on or the word when I met her, and she, as she said, she also felt little bit, she didn't feel very good about it. So she said, Adam, definitely I'm going to be with part of Yeah, it's a this story movie. worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are Correct. hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it, and it's happening. So a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that, whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that I the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive, hopefully. Tell us about your character, Adam, and Sneha. What do you want to say about that? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair, and I've got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I am also from here, from India, I also witness that shade of racism. But his character goes through it all, and the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing her husband being the Yeah, guy. harassed. He Yeah. been harassed, and he is not able to convey his wife what he's going through, because he understand if I tell her what I'm going through, she will be going through more stress, because being a wife, it's more stressful for her to see his husband being treated very badly abroad, outside. From in home, they are very like a family. So her role is supporting husband to go through these challenges, Yeah. and when he is out, how he's going to cope. So it doesn't matter which word you are. If your wife is there for you, you're going to win the word. स्नेहा, न्यूयॉर्क नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, तो उससे कितने डिफरेंट होने वाली है जो नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम की जो फिल्म थी जिसमें कटरीना कैफ भी थी, उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था जहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है. बट यू नो वॉट बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज है, बहुत ही ज़्यादा वर्जन्स है. जैसे इट्स कॉल्ड अ वैंटेज पॉइंट, कि बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर ऑल दीज टेररिस्ट अटैक्स. तो दिस इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट रेपोकशन बेसिकली. और आई थिंक दिस इज़ समथिंग, आई थिंक सिख्स को टारगेट किया गया था वहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट बिट. कुमार सानू सर, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. हाँ. म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का म्यूज़िक एक्चुअली मुझे जब बुला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था, एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोज़र. तो हमने गा दिया एक गाना. बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था. तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही मेरे
शायद आप लोग सुनोगे, अभी थोड़ी देर में उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा। सर क्या क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप हाँ कहते हैं? बहुत ही कम गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप, तो इस गाने की अगर क्या खास बात थी जो आपने नहीं, एक एक्चुअली क्या है कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए। एंड मेलोडी था, सुना मैंने, जब मेलोडी बहुत ही अच्छा मेलोडी था एंड लिरिकली पावरफुल था। फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिज्म के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार करके मूवी के लिए ये गाना, तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया एंड उस हिसाब से हमने गा दिया। तो इन लोगों को अच्छा लगा, अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा कि नहीं। दो यंग सिंगर्स भी है हमारे बीच में, हाँ। फैज और दिव्या जी, थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में, एक्सपीरियंस। Well, I can say, reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you'll be at the edge of your seat watching it. And, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, in life, and certainly in my experience, it doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that here's a man, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. Where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way or another. I don't know much about India. This is my first time coming here, but I know that there are issues within Indian society too, the north and the south. Sometimes people are darker, sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light. But ultimately, it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. Great. एज अ एक्टर ऐसी क्या चीज़ थी जो, मतलब सेंसिटिव सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको, मतलब एज ए इंडियन आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, अगर उस बारे में कुछ? See, fortunately for me, I've never gone through racism, touch wood, but I do feel that it is a global issue standing even today. And as an actor, we're always hungry to try and present different concepts. I'm a little मैंने ग्लैमर और गर्ल नेक्स्ट डोर एंड वो सब कर लिया है. आई नीड समथिंग मोर इन माई करियर, एंड if I get to present a script that's so sensitive and intense, it's very exhilarating, and I'm quite looking forward to see how it all shapes up. ओके, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अगर आप दोनों से जानना चाहूँगा, एडम एंड स्नेहा. Now the preparations are going to begin. So We'll start. our initial was आप लोगों को बस दिखाना ये सब. How much script is ready right now? How much shooting part is done? See, I'll tell you something about a script. It's always developing. Yeah. Right now we think कि सब कुछ ready है, but then we'll realize later down कि नहीं, something's not right. So a script is like a marriage. You always have to work on it. स्नेहा, एक और सवाल. कल सबसे बड़ी मूवी और आपके पोस्टर सलमान जी की किसी का भाई किसी की जान की मूवी रिलीज होने वाली है. आप क्या कहना चाहोगे? कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ये ईद काफ़ी स्पेशल होने वाली, 4 साल बाद. Every Eid is special for Salman because he's always got a release, but I don't think he needs any of our good wishes. I've always told him this कि आपका good karma is why you are who you are today. So I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे? या ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि सलमान भाई का गाना मूवी वो है भी अच्छा आदमी, इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है, एंड उनका मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है तो 100% ये चलना चाहिए और चलेगा भी.
क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो ट्रेलर वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है मूवी में देखने लायक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी। एंड आई थिंक बेस्ट विशेस हमारा है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट होए। मैडम डिड यू सॉ द ट्रेलर? हाँ जी, मैंने देखा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूँगा सम पीपल आर बॉर्न विथ, जैसे इन्होंने बोला कर्मा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ऑरा ऐसा है कि वो सुपर डुपर हिट होगी। और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ज़रूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं। अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी। तो आई विल ब्लेस, आई विल प्रे गॉड की सक्सेस फॉर इंडस्ट्री। But then we pray that every film is also a hit. As an actor and part of Yes. the film industry, we need rolling of money and work. So we want all the films to be hit. सर जाते जाते आपके और आपके दो लाइनें सुनना चाहिए, कोई भी नहीं, गाना। गाना चलाना बेटर रहेगा क्योंकि खाली वॉइस में गाना इज नॉट गुड है। तो अभी अभी गाना we will प्ले play that करेंगे। song. आई विल प्ले द सॉन्ग, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग टिश्यू पेपर रखिएगा साथ में। गाना प्ले करेंगे तो आप सुन लीजिए प्लीज़। This is your second movie with real life based story, right? Right. Yeah, yeah. So is it your love for the real life story or you're still going to explore fiction later on? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा जो जोनर है वो मनीष जी जानते हैं, माफियाज का है। और बिकॉज आई वर्क इन अ पुलिस, सो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माई लाइफ। और यस, मैं ये कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में कि हरदम, क्योंकि मैं इंडिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि वो जो अभी स्नेहा जी ने बोला कि सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ पे लोग कितने तकलीफ़ों से जाते हैं, कैसे जाते हैं, पानी में डूब डूब के जाते हैं, मगर ऐसी ये स्वर्ग है, यही स्वर्ग है हिंदुस्तान अपना, और इसके लिए मैं बनाता रहूँगा। ये बात पे ताली होनी चाहिए। थैंक यू। Okay. ऑलरेडी हमने सुन लिया, बहुत ही सोलफुल गाना है। आपके गाने के बारे में बताइए, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे, एडम सर ने मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है। और सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सिद्धांत सर बहुत अच्छे गाने बनाते हैं और सिद्धांत सर के लिए एक दो गाने और भी गाए, और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही सैड था ना, मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है। फ्रिकिंग आउट सॉन्ग। सर आप बताइए कितने सॉन्ग्स होंगे, किस तरह के सॉन्ग्स होंगे? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक सुन लिया है और फैज़ ने भी बताया कि किस तरह का गाना। हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें। और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अच्छा गाना बनाना है। होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा? ओके। सो गाना तो अच्छा लगे ही, साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना, उस सिचुएशन के साथ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊं जो फिल्म के सिचुएशन पे फिट हो। और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानू आपके लिए गा रहे हैं, फिर दिव्या कुमार, ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर, एंड दिस न्यू गाय आई एम टेलिंग यू ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर। सो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है। सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है। तो इसने भी मेरा गाया और मेरी प्रियोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है, और जब भी ये फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी, आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे से गाने बनाए हम लोग। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में? आई लव दिस पोस्टर। मुझे एडम सर का लुक, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को। उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ, पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ। और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, और सिद्धांत माधव सर जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स, इतने ब्यूटीफुली सिंग किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं। और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई फील। फैज़ कैसा एक्सपीरियंस था कुमार सानू सर के साथ, आज आपने स्टेज शेयर किया? अरे एकदम अनबिलीवेबल था कि मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है, शान सर का भी गाना है, और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है। तो
एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ, सभी से इंस्पिरेशन लिया है मैंने और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडियो नेशन जो यूके वाली कंपनी है, स्टूडियो नेशन यूके, ये अपना बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाली है और उसमें हज़ारों टैलेंट को छांट के चार अल्टीमेट टैलेंट इन्होंने तलाश किया है, 4 सिंगर्स जिनके साथ हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ तो कर ही रहे हैं। 4 अमेजिंग सिंगर्स हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सामने। सो आई वुड लाइक टू नेम देम फरहान, अमृता, अंकिता एंड सुप्रीत। प्लीज कम ऑन द स्टेज। Could be a part of this thing, and thanks to Siddhant sir and UK Nation. So that's all. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सुप्रीत चक्रवर्ती है एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं नेशन यूके स्टूडियो के एक हिस्सा हूँ और सबसे बहुत शुक्रिया सिद्धांत सर को। सो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ ये हो। और एंड ही इज़ आउटस्टैंडिंग सिंगर। मैं चाहूँगा 2 लाइन तो गा दे, 2 लाइन सुना, कुछ भी गा दे। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है। वाह। और आपके पीछे मैं और अमृता ये बोला। शी इज अगेन आउटस्टैंडिंग सिंगर। प्लीज। So this is Amrita Bharti and I'm really feeling very honored and glad to be a part of this music production house and Studio Nation UK को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी for having me on board and सिद्धांत सर को सारा क्रेडिट जाता है, वो परखना जानते हैं टैलेंट्स को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हम सबको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। आगे बहुत सारे अच्छे गाने आएंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड यस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शूटिंग कब से शुरू होने वाली है सर? जी फिल्म स्कार की शूटिंग हम अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, तकरीबन 20 तारीख के आसपास से, और इसकी शूटिंग हम किर्गिस्तान और साइप्रस में करने वाले हैं, जिसके लिए अभी मैं 25 से 30 तारीख के बीच में लोकेशन रेकी के लिए निकलने वाला हूँ। सो उम्मीद है कि शूटिंग जो है नेक्स्ट मंथ 20 तारीख से फिल्म ऑन फ्लोर होगी। और सर क्या कहना चाहेंगे स्टार कास्ट के बारे में, थोड़ा बताइए और कौन जुड़ने वाला है इस फिल्म के साथ? और जी बिल्कुल, फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो स्नेहा, उल्लाल एंड सैनी हैं। उसके अलावा खुशबू पुरोहित हैं और बाकी पूरी कास्टिंग जो है हम इंडिया से बाहर किर्गिस्तान और साइप्रस के एक्टर्स को कास्ट करने वाले हैं इस फिल्म में। और फिल्म की जो कहानी है वो बिकॉज़ भाषा इंग्लिश है और हम इसको हिंदी में डब करेंगे इस फिल्म को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।